Yeah, so it's 3-2 already, and we are starting with the thing now. So our today's webinar is on physiotherapy in older adults, an evidence-based clinical approach. First of all, as always, the disclaimer. This presentation is only for the sensitization, guidance, and creating awareness among the participants about the role of physiotherapy in older adults. Although we have tried our best to include all the latest correct information about the disease, but it may change at any point of time due to ever evolving new findings from various ongoing researches. Therefore, participants' discretion is advised along with proper implementation of your clinical knowledge and wisdom. Look, I always say your clinical knowledge and wisdom is your best guide. Don't follow anybody blindly because new and new researches are coming every day. So keep yourself updated. This presentation is on physiotherapy in older adults, a complete clinical approach, doesn't give any kind of permission or alliance to anyone to practice or teach any content unless they are properly qualified, trained, and licensed to practice. If done, it will be purely on their own risk and responsibility, and the organizers, presenter, and or associated organization doesn't own any responsibility for the same. The content of this presentation shall not be reproduced in any form without the written permission from the presenter and the organizer. So coming to the main point now, need to know why. Why as a physiotherapist, we should be knowing about the particular aspect of rehabilitation in the elderly patients, or you can say older adults. Because as we all know, physiotherapists are always the first contact practitioners and they have direct contact with the patients. So therefore, they can help in the prevention, early identification, treatment, patient education, and enhancing patient adherence. As we all know, prevention is always better than the cure. और इसी पे हम सब लोग lack करते हैं. We always are like talking about the treatment, rehabilitation, but we are not talking about the prehabilitation part anytime. This is the biggest part we are missing, and this is the biggest, you can say, chunk of the clinical practice we all are missing. तो हमको क्या करना है? प्रिवेंशन पे फोकस करना है. देखो, we all know aging process कैसे हो रहा है, what are the physiological changes happening in the body, and what will be the pathological changes that will be happening in the body. तो जो भी डिफॉर्मिटीज या प्रॉब्लम्स आने वाली है उनको प्रिवेंट कैसे करना है, हमको उसके बारे में भी वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो हम लोग नहीं करते हैं. ठीक है. सो ऑलवेज वर्क ऑन द प्रिवेंशन. डिवाइस सम प्रिवेंशन प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू योर एरिया एंड द स्कोप ऑफ प्रैक्टिस. जहां पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पे जो भी चीजें चलती है, देखो इंडिया इतना बड़ा है, हर जगह पे अलग 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 प्रैक्टिस चलती रहती हैं. सो डिपेंडिंग ऑन द एरिया, जस्ट डिवाइस सम प्रोसीजर्स जो भी आपके वहां पे फॉलो आप इजीली कर सकते हैं या आपके सेटअप के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं. ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने प्रोटोकॉल्स बना सकते हैं और पेशेंट के ऊपर यूज कर सकते हैं. फाइन. ओके. सेकंड इज द अर्ली आइडेंटिफिकेशन. देखिए, अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज आल्सो वेरी नेसेसरी बिकॉज हमको पता तो है कि होने क्या वाला है पेशेंट्स के अंदर, क्या हो सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द थिंग्स व्हिच कैन हैपन. बट उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है बिकॉज जरूरी नहीं कि फिजिशियन उसको आइडेंटिफाई कर पाए या पेशेंट अपने आप उसको सिम्टम्स को पकड़ पाए कि मेरे को ये प्रॉब्लम होने वाली है. सो बिकॉज यू आर द फर्स्ट कॉन्टेक्ट प्रैक्टिशनर, आप उसको आइडेंटिफिकेशन में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं. एंड देन यू कैन डू अकॉर्डिंगली. अगर आपका केस है तो आप उस पर वर्कअप ऑन कर सकते हैं या यू कैन रेफर टू द स्पेशलिस्ट जिस भी ब्रांच की उसको रिक्वायरमेंट है. Treatment, we all know we can play a very major role in the treatment and we can like treat the patient independently after properly assessing the thing. Similarly, patient education, because in our practice आप सभी जानते हैं we are spending quite a lot of time with the patient. हम patient के साथ में बहुत time spend करते हैं in a session also and number of days of the treatment also. So most of the times patient हमारे साथ familiar काफी ज्यादा हो जाता है and he or she is very comfortable with us. Normally देखो, at my practice also I know most of the patient, उनकी पूरी family history I know, many of the relatives उनका family में कैसा रहता है we all know. So obviously depending on the thing, जैसे हमको लगता है कि हम patient को समझा पाएंगे we can educate in that way. Normally होता क्या, specialist पे या बड़े centers पे they don't give proper time to the patient, but you spend ample time with the patient, but you have to only use that ample time in a good way. Similarly, enhancing patient adherence, that is also very important. आपने पेशेंट को एडहेरेंस को कैसे इंप्रूव करना है, रिगार्डिंग मेडिसिन, रिगार्डिंग द रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल, दोनों की बात हो रही है. पेशेंट ने डॉक्टर को गया, दवाई तो लिखवा ली, बट दवाई ले रहा है कि नहीं ले रहा किसी को नहीं पता. डॉक्टर तो नहीं चेक कर पाता ना इस चीजों को.
एंड आपकी प्रैक्टिस में भी आपको पता चलेगा बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर एग्जाम्पल के तौर पे, बट वो ब्लड प्रेशर की दवाई कंटिन्यूसली नहीं ले रहे, बिकॉज वो अपने आप से बोलेंगे आपको डॉक्टर साहब मुझे पता चल जाता है जिस दिन बीपी होता है मैं उस दिन ले लेता हूँ। यार ऐसे तो किसी को पता नहीं चल सकता ना। सो सिमिलरली रिहेबिलिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, आपने पेशेंट का ट्रीटमेंट किया, आपने उसको एक्सरसाइज प्रोटोकॉल बना के दे दिया कि ये आपको एक्सरसाइजेस करनी है, बट वो घर पे जाके उसको अडेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसके लिए आपको डिवाइस करना पड़ेगा। और अगेन सेम थिंग, डिपेंडिंग ऑन द सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस, डिपेंडिंग ऑन द वेरियस अदर अवेयरनेस थिंग्स एंड ऑल, आपके जो भी पेशेंट का है उसके अकॉर्डिंगली आपको इसका मेथड डिवाइस करना पड़ेगा। लाइक मैंने अपने सेंटर पे क्या किया हुआ है, आई हैव डिवाइस अ वे, इनिशियली मेरे को भी प्रॉब्लम होती थी, देन आई थॉट ऑफ अ थिंग कि आफ्टर द ट्रीटमेंट इज ओवर, जो एक्टिव फिजियोथेरेपी की जरूरत है उसके बाद जो हम होम एक्सरसाइज प्रोग्राम दे रहे हैं, आई ऑलवेज से टू द पेशेंट कि आप क्लिनिक पे आइए और आप एक्सरसाइजेस यहाँ पे करके जाइए। आई हायर्ड like one person specially for this thing, जो सिर्फ पेशेंट्स को एक्सरसाइजेस कराता है, एंड बिलीव मी द रिजल्ट्स आर फेबुलस, उसमें काफी इंप्रूवमेंट होते हैं, बिकॉज घर पे कोई नहीं करता है। अगर एक बार आपके यहाँ पे आके करा है ना, देन सेकंड टाइम घर पे भी कर ही लेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। यार ठीक है, नहीं भी तो पेशेंट को पता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, एंड दे कांट ब्लेम यू, उनको पता है कि हमने क्या मिस किया, बिकॉज हमेशा क्या होता है, पेशेंट होता है फिजियोथेरेपी का सिर्फ पार्ट है मशीन, मशीन लगा दी, कितनी मशीन लगा दी, दिस इज द थिंग, बट you as a clinician should stress on rehabilitation as a whole. Now coming to the business part, as we all know, this elderly patient will act as a new business opportunity. देखिए अभी तक हम क्या करते हैं, जनरल प्रैक्टिस करते हैं, ब्रेड एंड बटर प्रैक्टिस, जो भी पेन, ज्वाइंट पेन, ऑल दोस थिंग्स आर कमिंग आउट, पैरालिसिस पेशेंट्स आर कमिंग आउट, जो भी हमारी ब्रेड एंड बटर प्रैक्टिस हम सब वो कर रहे थे, बट अभी पे जो सिनेरियो चल रहा है उसमें ब्रेड एंड बटर प्रैक्टिस इज ऑब्वियसली अफेक्टेड, सो हमको न्यू न्यू एवेन्यूज ढूंढने पड़ेंगे। दिस इज व्हाट सीरीज, दिस सीरीज एक्सप्लोरिंग न्यू होराइजंस इज ऑल अबाउट। इस सीरीज में हम लोग वही चीजें कर रहे हैं जो अनटच्ड है, दे आर विद इन द स्कोप ऑफ आवर प्रैक्टिस, बट हम उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो आई एम ट्राइंग टू टच ऑल दोस टॉपिक्स बेसिकली। सो अगर आप एल्डरली पे स्पेशली वर्क अपॉन करते हैं, सो दैट विल हेल्प इन इंप्रूविंग योर बिजनेस फॉर श्योर, एंड दिस विल ऑल्सो एक्ट एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू अर्न योर प्लेस। देखिए ये तो जो भी हमारे साथ में है, बिकॉज वी हैव स्टूडेंट्स, वी हैव क्लिनिशियंस, वी हैव सम सीनियर प्रोफेसर्स आल्सो, सो हमेशा से ये बात रहती है काउंसिल हमारी रिस्पेक्ट नहीं है, पे स्केल नहीं है, एंड ऑल दोस थिंग्स। देखो आई बिलीव कि ठीक है बोलना इज वेरी इजी, हम लोग आईएपी को ब्लेम कर दे कि जो भी आपकी स्टेट काउंसिल उसको ब्लेम करते हैं, सबको ब्लेम करते हैं, सीनियर्स को ब्लेम करते हैं उन्होंने क्या किया, तो यार हम भी क्या कर रहे हैं, पॉइंट इज दिस थिंग, ठीक है सीनियर्स ने तो क्या किया नहीं किया दैट इज अनदर टॉपिक, बट वी एज अ क्लिनिशियन हम लोग क्या कर रहे हैं, मेरे लिए वो मैटर वो करता है। काउंसिल बनने से किसी को रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली, आप किसी भी कोई भी फील्ड लगा लीजिए, मेडिकल को छोड़ दीजिए, आप किसी को भी लगा लो, आप क्यों रिस्पेक्ट करते हो, बिकॉज वो बंदा अपने फील्ड में एक्सपर्ट होगा तो आप उसको रिस्पेक्ट करोगे, दैट फेलो इज डूइंग अ थिंग इन अ प्रॉपर वे, प्रॉपर जो गाइडलाइंस को फॉलो करके साइंटिफिक वे में अगर कर रहा है कोई भी चीज, तो हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। इवन आप अपने घर पे इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, देखिए इलेक्ट्रिशियन तो बहुत सारे होंगे आपके एरिया में, सिंपल बेसिक से लेके चलते हैं, तो आप किसको प्रेफर करेंगे, जो चार्ज प्रॉपर कर रहा है, ज्यादा ओवर चार्जिंग नहीं कर रहा, एंड डूइंग इन अ प्रॉपर वे। अगर चार्जिंग थोड़ा बहुत चलेगा बट अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा तो आप कभी नहीं बुलाएंगे उसको, ठीक है, सो दैट इज द वे। अब भी खुद से ईमानदारी से वी हैव टू सी इन अवरसेल्फ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे को बेसिकली जहां जहां पे अपग्रेड करने की जरूरत है हम वहां पे अपग्रेड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सिंपल ग्रेजुएशन किया, बीपीटी किया, एंड दैट इज ऑल, ठीक है। सो वी हैव टू वर्क अपॉन दिस थिंग, प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करो, कीप योरसेल्फ अपडेटेड, डू योर प्रैक्टिस इन अ प्रॉपर वे, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि पेशेंट आया तो चलो बैक पेन है, शॉर्ट वेव लगाया, ये लगाया, वो लगाया, हिट पैक लगाया, एंड सभी पे सेम चीजें कर रहे हैं, आईएफटी पे कोई वर्क अपॉन नहीं करा। नो, अल्ट्रासोनिक मेरा मन है मैं 7 मिनट्स लगाऊं कि 10 मिनट्स लगाऊं, आधे लोग बोलेंगे मसाज कर दो, डॉक्टर साहब वो दूसरे क्लिनिक वाले तो करते थे, यार व्हाट इज दिस थिंग, टेक अ बोल्ड स्टांस। देखो मैं अपने क्लिनिक में मेरी कई बार पेशेंट से इस बात को लेके हो जाती है, एंड पेशेंट रिफ्यूज रिफ्यूज तो रिफ्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ दो, बट जो आपके पास आ रहे हैं यू नो कि दैट वो बंदे को, पेशेंट ऑल्सो नोज कि आप अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे ना, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस फिर करो, सिंपल थिंग इज दैट। सो यू हैव टू अर्न योर प्लेस बाय योरसेल्फ, कोई आपको भीख में नहीं देने वाला योर प्लेस, सो वर्क अपॉन दिस थिंग, ओके। Now, what are older adults or what are elderly population? Elderly or old age consists of ages nearing or surpassing the average lifespan of human beings, and the boundary of old age cannot be defined exactly because it doesn't have the same meaning in all societies. दिस इज वेरी जनरल थिंग, हर जगह पे ओल्ड एज की डेफिनेशन अलग अलग होगी, हर बंदे की सोच के हिसाब से ओल्ड एज की डेफिनेशन अलग अलग होगी। देखो टू बी वेरी सिंपल, हम लोग क्या बोलते हैं ओल्ड एज को हिंदी में क्या बोलते हैं, बुढ़ापा। बुढ़ापा इज, अगर आप सोचेंगे क्या होता है बुरा आपा,
यानी जब आप अपने आप से अंदर से अपने आप को बुरा फील कर रहे हैं, दैट इज फॉर मी बुढ़ापा। ऐसा जरूरी नहीं कि 60 ईयर्स पे होगा, 50 पे होगा, 40 पे, यार अगर हो सकता है मे बी आई एम 30, 35, ठीक है, बट अगर आई एम नॉट सो वेल, अगर मैं अंदर से अपने आप को फिट फॉलो मतलब फील नहीं कर रहा हूँ, देन ऑब्वियसली मैं अपने आप को कंसिडर करना शुरू कर दूँ जल्दी बुढ़ापा। सिमिलरली आप देखेंगे पेशेंट के सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस, अवेयरनेस पे बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगी। तो देयर इज नो प्रॉपर डेफिनेशन। However, in India, Government of India has adopted a national policy on older persons in January 1999, and the policy defines senior citizen or elderly as a person who is of age 60 years or above, and the people can be considered old because of certain changes in their activities and social goals. Okay. Now, the term older adults define individuals aged more than 65 years and individual aged 50 to 64 years with clinically significant conditions or physical limitations that affect movement, physical fitness और PA. PA stand for physical activity. ये बहुत बार टर्म हमारी प्रेजेंटेशन में आने वाली है PA. So PA will stand for physical activity. Okay, and represents a diverse spectrum of ages and physiological capabilities. This definition is according to Skinner. Okay, ये क्या बोलता है कि इंडिविजुअल या तो 65 ईयर से ज्यादा है या फिर ऑल दोज इंडिविजुअल्स जो 50 से 64 ईयर के बीच के एज के हैं, बट दे हैव सम क्लिनिकल सिग्निफिकेंट कंडीशंस या फिर फिजिकल लिमिटेशंस, कोई भी हो सकती हैं, दैट इफेक्ट्स द मूवमेंट, फिजिकल फिटनेस और फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, एंड इट कैन हैपन ओवर अ डाइवर्स स्पेक्ट्रम ऑफ एज एंड फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी. ओके, so now what is gerontology? The medical study of aging process is called gerontology. Aging में क्या क्या changes आ रहे हैं, this study is known as gerontology, and the study of diseases that afflicts the elderly is known as geriatrics. So there is a line between geriatrics and gerontology, so you should be clear about that thing. And old people have limited regenerative abilities and are more prone to disease, syndromes and sickness as compared to older adults. It's very clear. Regeneration capabilities obviously उनकी कम होगी and they will be more prone to any disease or injuries. Similarly, syndromes and sickness. So आपको थोड़ा सा you have to be cautious while doing with the elderly population. Normal aging is associated with reduced functional capacity, strength, and degenerative musculoskeletal conditions. So this is but obvious. Now, this is data about the elderly population in India, and this is based on a report released by Government of India in 2016, and this is based on a census 2011. So 2011 में, as you can see, the population of India was 120 crores, 1 to 110 million, ठीक है, 1210 मिलियन यानी 120 करोड़. इसमें से मेल फीमेल की रेशियो आप देख लीजिए, ठीक है, मेल ज्यादा है फीमेल्स के मुकाबले. बट व्हेन वी कम टू द एल्डरली पॉपुलेशन, 60 प्लस की बात कर रहे हैं हम, so 103 million, that means almost 10 crores people were elderly in 2011, यानी आपकी पॉपुलेशन का 8.6%. एंड आप यहाँ पे अगर डाटा को रिव्यू करेंगे तो आप देख सकते हैं फीमेल्स आर मोर देन मेल्स. नॉर्मल पॉपुलेशन में क्या था, मेल वर मोर देन फीमेल, मेल ज्यादा है फीमेल्स कम है, बट यहाँ पे उल्टा है, फीमेल्स ज्यादा है मेल कम है. सो यू हैव टू वर्क अपॉन दिस थिंग. फीमेल्स के अकॉर्डिंगली जो डिजीजेस फीमेल्स में ज्यादा होती है उसके अकॉर्डिंगली आपको वर्क अपॉन करना है, प्रोटोकॉल्स अपने डेवलप करने हैं. सो दिस इज 8.6% of the population in 2011, and by 2026 it is expected to be like around 20% of the population. So आप सोच सकते हैं 2026 के अंदर इंडिया की कितनी पॉपुलेशन होगी एंड उसका 20%. So that is a huge number. So you, if you are specializing in elderly population, that will act as a huge clientage to you. Fine. This is another data, and this table shows various like you can say censuses from 1961 to 2011 and the number of elderly population 60 years and above. अब अगर आप इसमें देखेंगे, इनिशियली क्या होता था, फीमेल्स कम होती थी थोड़ा, ठीक है, यहाँ पे देखिए, बट ग्रेजुअली ओवर टाइम नंबर ऑफ फीमेल यहाँ से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जा रहा है 1981 के बाद से. अभी भी क्या हो जा रहा है, आप देखेंगे फीमेल्स 52.8 है एंड 51.1 मेल्स है, ऑल्दो मार्जिनल डिफरेंस, बट कंसिडरिंग इंडिया दिस इज अ थिंग यू हैव टू नोट अपॉन. ओके, सिमिलरली रूरल और अर्बन में आप देखेंगे, रूरल में इनिशियली क्या था 21%, 21 मिलियन लोग होते थे एल्डरली, बट नाउ 73 मिलियंस हैं. तो आप देखेंगे कितना इंक्रीज किया, ऑलमोस्ट यू कैन से 3 to 4 times. बट नाउ कमिंग अपॉन अर्बन थिंग, इट वाज इनिशियली 3.7, बट अभी कितना है 30.6, ऑलमोस्ट 10 times. सो रूरल में एल्डरली पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है अप्रोक्सीमेटली 4 times you can say, and urban areas में क्या कर रहा है 10 times. that means urbanization is happening. so depending on your clinic कहाँ पे है, urban area में, rural area में, अब इससे डाटा से आप एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं.
Coming to another thing, most common disability क्या है? Locomotor disability and visual disability as per that 2011 census. So locomotor disability, this is the area you can work upon, and this will act as a very big advantage to you people. Okay, now because physiological aging doesn't occur uniformly across the population, as we all know, individuals of similar chronological age may differ dramatically in their response to exercises. सिंपल थिंग है, पेशेंट की एज चाहे सेम हो बट उनका रिस्पॉन्स एक्सरसाइजेस को लेके बिल्कुल डिफरेंट होगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एंड इन एडिशन इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश द इफेक्ट्स ऑफ एजिंग ऑन फिजियोलॉजिकल फंक्शन फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ डीकंडीशनिंग और डिजीज, यानी अपन को ये डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल होगा कि जो भी इफेक्ट आ रहा है वो एजिंग की वजह से आ रहा है पेशेंट की बॉडी के ऊपर, या डीकंडीशनिंग या किसी डिजीज की वजह से, बिकॉज एल्डरली में तीनों चीजें हो रही है, एजिंग भी हैपनिंग, डीकंडीशनिंग भी हो रही है और कोई डिजीज भी हो सकती है। सो तीनों में से किस चीज को लेके ये वो इफेक्ट आ रहा है उसको आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। Therefore, health and functional status are often better indicators than simply the chronological age. Okay. Now, older adults at any submaximal exercise tends to exert a higher percentage of their maximal capacity and effort than the younger person. Simple thing है, सब मैक्सिमल एक्सरसाइजेस हम कर रहे हैं बात, यानी यू कैन से आपका बोक स्केल पे 7 से नीचे का अगर आरपी दे रहा है पेशेंट, ठीक है, तो उस पे जो पेशेंट का एफर्ट होता है, परसेंटेज ऑफ एफर्ट विल बी हायर इन केस ऑफ एल्डरली एज कंपेयर टू द यंग पॉपुलेशन. Now coming to the various variables which can change with age. In elderly, as you can say in this table, resting heart rate will be grossly unchanged, but maximum heart rate will be lower as compared to the young population. अगर आप एक्सरसाइज इंटेंसिटी सेट करना चाहते हैं, तो एज वी ऑल नो मैक्सिमम हार्ट रेट कितना होता है 220 माइनस एज, ठीक है। सो अगर एज बढ़ रही है तो ऑब्वियसली मैक्सिमम हार्ट रेट का जो फिगर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली कार्डियक आउटपुट आल्सो रिड्यूसेस, resting and exercise blood pressure is higher as compared to younger patients, and oxygen uptake both absolute and relative will be low. Similarly, residual volume will be high in elderly population, vital capacity will be low, reaction time will be slow, muscle strength will be low, flexibility will be again low along with the bone mass. Similarly, fat free body mass will be low but percentage of the body fat will be high, यानी lean body mass patient का कम हो जा रहा है. Glucose tolerance will be on lower side and recovery time will be higher. Okay, again to sum it up, कार्डियोवैस्कुलर की अगर बात करते हैं, अगर हम सिस्टम वाइज बात कर रहे हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड डिक्रीज मैक्सिमम वर्क कैपेसिटी, बट देयर विल बी इंक्रीज इन एसबीपी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विद और विदाउट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. देखिए, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मे और मे नॉट इंक्रीज बट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज. ये हमारी जो प्रीवियस वेबिनार हुआ था हाइपरटेंशन में, उधर पे आई हैव शोन यू अ ग्राफ, उसमें क्लियरली डिपिक्ट किया गया था कि as the age increases the chances of having hypertension also increases. Similarly, there will be narrowing of the blood vessels and decreased vital capacity, chest wall compliance and maximum ventilation. Okay, now coming to the musculoskeletal system, bone mass will be decreased. It will be more in women, about 1% per year between 30 to 35 years of age and 2 to 3% per year post menopausal. So you can say around in, if the patient is female and around 50 or maybe 55 years of age, so आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कितना उसका बोन मास का रिडक्शन ऑलरेडी हो चुका होगा ड्यू टू नॉर्मल एजिंग प्रोसेस. ओके, सिमिलरली मसल मास विल आल्सो डिक्रीज and it will decrease by 3 to 5% per decade starting from the middle age, with leg and trunk muscles more affected. Flexibility will obviously be decreased due to increased cross linkages of the elastin fibers. Okay, and it can also be decreased due to arthritis or osteoporosis, and similarly muscle shortening will be there in elderly population. Similarly, nervous system will also be affected. Impairment of sensory motor function will be there along with the mentation. Mentation means cognitive functions, okay, and decreased coordination and balance will be there. Now, overwhelming evidence exists that support the benefit of physical activity in elderly adults. And how can physical activity help in slowing the physiological changes that impairs exercise capacity, optimizing age-related changes in body composition, promoting psychological and cognitive well-being, managing chronic diseases, reducing the risk of physical disability, and increasing the longevity. So, physical activity helps in various ways. These are the ways in which the physical activity will help the patient, and there are n number of evidences. I have just sum upon the two, one by the ACSM and one by MS Singh. Okay, and but despite all these benefits, ये सारे benefits हमको पता है, क्या प्रॉब्लम हमारी सब हमको पता है, but still the reality is on other side. Reality is
older adults are the least physically active group of all age groups. This is the reality. Now coming to the sedentary time, देखिए पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है या नहीं कर रहा, दैट इज वन थिंग. फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, नॉर्मल एक्टिविटीज कर रहा है, दैट इज सेकंड सिनेरियो. एंड थर्ड इज ना वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है ना वो नॉर्मल एडीएल्स कर रहा है, एंड द पेशेंट इज वेरी मच सेडेंटरी. दीज आर द थ्री सिनेरियोज. अब हम इसके बारे में बात करते हैं. सो सेडेंटरी में क्या होता है, वेरियस evidences suggest that sedentary time increases with older age, and excessive time spent in sedentary behavior such as sitting is associated with deleterious health outcomes including abnormal glucose metabolism and increased mortality. Similarly, reducing sedentary time independent of physical activity has known cardiovascular, metabolic and functional benefits in older adults. That's what I'm saying. तीन सिनेरियो में से अगर हम थर्ड वाला जो सिनेरियो हम बात कर रहे थे, सेडेंटरी है पेशेंट, कंप्लीटली सेडेंटरी, एंड वी समहाउ वी आर रिड्यूसिंग द सेडेंटरी टाइम. अगर वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं भी कर रहा है, जो गाइडलाइंस बोलती हैं आपको करनी चाहिए एज के अकॉर्डिंगली, वो नहीं भी कर रहा बट एडीएल्स भी इंक्रीज कर रहा है, दैट विल आल्सो लाइक decreases your chances of any cardiovascular or metabolic diseases. Okay, another study, this by Blackwell and et al, suggests that among men 71 years or older whose physical activity exceeded current guidelines, more time spent in sedentary behavior was associated with greater mortality risk. मतलब पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी कर रहे थे मोर देन द करंट गाइडलाइंस, बट स्टिल वो जितना टाइम फिजिकल एक्टिविटी किया उसके अलावा बाकी जो भी टाइम बचता था वो सब सेडेंटरी में वो स्पेंड कर दे रहे थे. दे वर नॉट एक्टिव इन देयर डेली लाइफ. सो उन केसेस के अंदर भी मोर्टेलिटी का रिस्क वाज ग्रेटर एज कंपेयर टू द अदर पॉपुलेशन. सो दैट इज व्हाई बीइंग सेडेंटरी इज वेरी वेरी hazardous for your health. This is the message I want to convey to you. And any amount of exercise is better than being sedentary, even if the individual health status prevents the achievement of recommended goals. देखिए गाइडलाइंस बोलती हैं कि you have to do at a particular intensity या particular frequency या volume जो भी है. अगर आप उसको आपके हेल्थ स्टेटस अलाउ नहीं करता, आप उतना नहीं भी कर पा रहे, नो प्रॉब्लम. सेडेंटरी होने से मच बेटर है, जितना भी कर पा रहे हैं उतना कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट दैट इज very much better than being sedentary. Fine. Now what are the barriers to exercise? Lack of knowledge, lack of motivation, poor health and lack of social support and social isolation. Lack of knowledge we all know, यहाँ पे पेशेंट के अंदर तो होता ही होता है, पेशेंट आर नॉट वेरी अवेयर, देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज इन पेशेंट्स, बट इन क्लिनिशियंस आल्सो देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज और अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द एक्सरसाइज. या तो उनको नॉलेज नहीं है या है तो दे डोंट वांट टू रेफर. सिमिलरली लैक ऑफ मोटिवेशन, आधे से ज्यादा आपके पास जो पेशेंट आते होंगे दे आर नॉट वेरी मोटिवेटेड. सो जितना काम आपको उसके ट्रीटमेंट पे करना चाहिए उतना ही ज्यादा काम उसके मोटिवेशन पे करना चाहिए, बिकॉज अगर पेशेंट मोटिवेटेड नहीं है तो नहीं होने वाला कुछ. ये दिस आई कैन टेल विद माय एक्सपीरियंस. अब मोटिवेशन दो तरीके से हो सकता है, आइदर तो पेशेंट की नीड है. देखिए मैंने क्या अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, जिसको नीड होती है, द पेशेंट हु इज नीडी, बिकॉज उसको पता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लाइक यू कैन से 45-50 years का पेशेंट है, उसके बच्चे अभी दे आर नॉट मैरिड और नॉट सेटल्ड, पेशेंट विल बी मोटिवेटेड, डोंट वरी. ठीक है, वो अपने आप से मोटिवेटेड होगा बिकॉज ही और शी नोज कि मेरे को अपने बच्चों का करना है, आई हैव टू सेटल माय किड्स, आई हैव टू डू एवरीथिंग फॉर माय किड्स. तो अपने को लेके मोटिवेटेड नहीं होगा बट बच्चों को लेके होगा. बट पेशेंट्स वो आर ओल्डर, जैसे 65-70, उनका पहला डायलॉग क्या होता है, डॉक्टर साहब अब तो जिंदगी निकल गई, अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना. ठीक है, बिकॉज उनके बच्चे सेटल्ड हैं, दे हैव प्लेड विद देयर ग्रैंडचिल्ड्रन. मतलब सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस मोटिवेशन इज द प्रॉब्लम. आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये प्रॉब्लम होती है. सो ऑब्वियसली अगर मोटिवेटेड नहीं होगा तो एडहेरेंस अपने आप इफेक्टेड हो जाएगी. सो वी हैव टू वर्क अपॉन मोटिवेशन इन अ बिग वे. सिमिलरली पुअर हेल्थ, पेशेंट्स को बहुत सारी कंडीशंस होंगी, वेरियस फिजिकल लिमिटेशंस होगी, फिजियोलॉजिकल लिमिटेशंस होगी. So that will act as a barrier to exercise. And similarly lack of social support and social isolation, this is another very big problem in India. Social support नहीं होगा. अगर देखो आप पेशेंट को सिंपली, मैंने कितनी बार नोटिस किया, we are prescribing a simple you can say lumbosecular belt to the patient, पेशेंट नहीं लगा रहा बिकॉज डॉक्टर साहब रास्ते में लगा के नहीं जाऊंगा, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा. सर्वाइकल कॉलर में सिमिलरली पेशेंट को नीड है बट वो यूज क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज कोई क्या बोलेगा. दिस इज अ बिगर थिंग. सो सोशल सपोर्ट नहीं होगा. सिमिलरली अगर आप पेशेंट को एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट कर रहे हो ना, तो पेशेंट तो एक्सरसाइज करना चाहता है बट सोशल फियर, दैट इज अ वेरी बिग थिंग. वो तो छोड़ दो. एंड सोशल आइसोलेशन इज योर प्रॉब्लम. मोस्ट ऑफ द एल्डरली आर आइसोलेटेड इन द सोसाइटी नाउअडेज. उनके बच्चे कहीं और सेटल्ड हैं, दे आर लिविंग अलोन. प्लीज म्यूट योर माइक.
whosoever is unmuted. So social isolation I was talking about. Social isolation is another big problem. उसमें क्या ना, अगर पेशेंट आइसोलेटेड होता है ग्रेजुअली डीमोटिवेटेड भी हो जाता है, और अगर कोई सब लोग ध्यान नहीं दे रहे, देखो ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, सो अगर वो सोसाइटी में नहीं रह रहा, आइसोलेटेड रह रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो अपने आप ही आ जाएंगी, और आप उसके आइसोलेशन को खत्म कर दीजिए समहाउ, कैसे भी करके उसको नॉर्मल लाइफ में लेके आ जाइए, हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी गॉन। एंड दिस आई हैव एक्सपीरियंस एट माई क्लिनिक माई सेल्फ। ये देखिए, नॉर्मली मैंने क्या किया, मैंने बताया ना आपको कि मैंने अपने क्लिनिक पे क्या कर दिया, आई हैव हायर्ड अ स्टाफ पर्टिकुलरली फॉर कि आप क्लिनिक पे आइए, नो चार्ज फॉर डूइंग द एक्सरसाइज। ट्रीटमेंट के बाद अगर पेशेंट एक्सरसाइज के लिए आ रहा है 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, नो प्रॉब्लम यार, कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए क्लिनिक पे एक्सरसाइज कीजिए। आई हैव अलॉटेड अ पर्टिकुलर बेड एंड पर्टिकुलर टाइम टू एवरी पेशेंट। अब उससे होता क्या है, मेरा रिजल्ट तो डेफिनेटली इंप्रूव हो ही रहा है, बिकॉज आई हैव गेट एन एक्स्ट्रा थिंग जो किसी क्लिनिक पे मेरे एरिया में नहीं कोई कर रहा है, ठीक है, बट मैं कर रहा हूँ, इसलिए पेशेंट को लगता है यार यहाँ पे एक्सरसाइज भी हो जाएगी, तो दिस इज अ बेटर थिंग, मेरी प्रैक्टिस इंक्रीज कर रही है, फाइन। अगर एक्सरसाइज कर रहा है, वी ऑल नो रिजल्ट आएगा ही आएगा, मेरी प्रैक्टिस अपने आप इंप्रूव होगी, पेशेंट अपने आप माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो जाएगी, यार वहाँ पे रिजल्ट अच्छा आने वाला। सो इवन इफ योर चार्जेस अ बिट हायर फ्रॉम अदर पेशेंट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। थर्ड क्या हो रहा है, एक्सरसाइजेस में टाइम लग रहा है, अनदर पेशेंट इज वेटिंग, ग्रेजुअली क्या होता है ना, फीमेल्स का या मेल्स का एल्डरली लोगों का अपने आप एक ग्रुप बन जाएगा। आई हैव लाइक डिवोटेड अ स्पेशल अदर एरिया, स्पेशल एरिया इन माय क्लिनिक। सो उसकी वजह से क्या हो जा रहा है कि वो उधर पे क्या करते हैं ना, वेटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे को अपने आप कर लेंगे, आपको कुछ नहीं करना उसके अंदर। सो ग्रेजुअली उनका आना जाना शुरू हो जाएगा, एक दूसरे के घर फोन पे बात करना शुरू कर देंगे। सो उनका आइसोलेशन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर फैमिली मेंबर्स उनको ध्यान नहीं भी दे रहे हैं ना, सो दे हैव gradually developed a new group, so that will also help in the health, fine. Now what are the contraindications to exercise program? There are few absolute and few relative. First of all, absolute: a recent significant change in the resting ECG suggesting significant ischemia, recent MI within 2 days, or other acute cardiac conditions, unstable angina, uncontrolled cardiac dysrhythmias causing symptoms of hemodynamic compromise, symptomatic severe aortic stenosis, uncontrolled symptomatic heart failure, acute PE, pulmonary embolus or pulmonary infarction, acute myocarditis or pericarditis, suspected or known dissecting aneurysm, and acute systemic infection that may be accompanied by fever, body aches, or swollen lymph nodes. Now, coming to the relative thing, and relative contraindications can be superseded if the benefits outweigh the risk of exercise. Now, here comes your clinical judgment. आपको खुद से जज करना पड़ेगा, ये मैं नहीं बता सकता आपको. I can only show you the light, but depending on the situation, आप कितना confident है नहीं है, आपको खुद से decide करना होगा. Now, relative contraindications are left main coronary stenosis, moderate stenotic valvular heart disease, electrolyte abnormalities, severe arterial hypertension, tachycardia or bradycardias, hypertrophic cardiomyopathy or other form of outflow tract obstruction, neuromuscular, musculoskeletal or rheumatic disorders that can exacerbate by exercise, high degree AV block, ventricular aneurysm, uncontrolled metabolic disease such as diabetes, thyrotoxicosis or myxedema, hypothyroidism you can say, chronic infectious disease like mononucleosis. This is a type of uh, uh, infection which can spread, uh, hepatitis and AIDS, mental or physical impairment leading to inability to exercise adequately. Now coming to the multidisciplinary team, this is very essential. फिजियो का एक रोल होता है, पर मल्टीडिसिप्लिनरी टीम में एवरी पर्सन हैज अ रोल. तो बेसिक आई एम जस्ट थ्रोइंग अ लाइट. फिजिशियन की बात करते हैं, तो फिजिशियन इज इंपॉर्टेंट इन हेल्पिंग एन एल्डर एडल्ट मेक द फर्स्ट स्टेप इनटू एडॉप्शन ऑफ अ वेल राउंडेड एक्सरसाइज प्रोग्राम. एंड ओल्डर एडल्ट्स आर मोर लाइकली टू स्टार्ट एन एक्सरसाइज प्रोग्राम इफ देयर फिजिशियन स्पीक्स टू देम अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज इन देयर हेल्थ. देखिए, जो पेशेंट आपके पास डायरेक्टली आ रहे हैं उनसे आप खुद से बात कर सकते हैं, बट बहुत सारे पेशेंट है जो फिजियोथेरेपी कराने के लिए नहीं आ रहे. सो अगर आपने अपने लोकल एरिया के फिजिशियंस को लूप में लिया हुआ है, they are confident about your abilities, so they can just guide the patient at your centers. But one thing I suggest, keep the charges reasonable. अगर आप फ्री नहीं भी अफोर्ड कर सकते हो, keep the charges reasonable, ताकि उसको हर कोई बंदा अफोर्ड कर सके. ओके. नर्स, they can help to monitor chronic disease risk factor and health improvements by assessing medication side effects and monitoring changes in various parameters. And the nurses can also act as a resource and a liaison to primary care physician if the older adults have any health related queries. Physical therapists, we physiotherapists can help individuals who have any specific medical condition and are involved with rehabilitation. The physical therapist is ideal for giving specific exercises
and oversight to a rehabilitation program. And the physical therapist is a great resource for exercises and can help with strength, flexibility, balance, and functional training activities. Occupational therapists also have a very important role, and they can assist older adults to improve their functionality and assistive devices and give appropriate exercises for rehabilitation. They can also help their clients to perform an array of activities ranging from using a computer or any ADLs such as dressing, cooking, eating, etc. Okay. Now, dietitian, they have a very important role. Dietitian can help in designing a balanced diet with appropriate nutrition to help the older adults maintain, gain, or lose weight, whatever is necessary for the patient. And they can also make sure that patient is getting a proper nutrition to reduce the effect of sarcopenia that is often happening in the older adults. Similarly, a social worker can help older adults find cost-effective exercise program, community exercise programs, and government of private funded aids to offset the cost of joining an exercise facility. देखिए, जैसे मैंने पहले बोला, हर कोई older effort afford नहीं कर पाएगा older people because of the financial liabilities. So social worker can help in this way, and the social worker can also help identify the healthcare professional who may be involved in integrating exercise into the older adults routine healthcare plans. ठीक है? So social worker यहाँ पे patient की काफी help कर सकता है cost को कम करने में, because they can help the patient in getting various aids. Similarly, a pharmacist in consultation with the physician should be consulted when any question arises about the interaction of the medication and exercise. जैसे हम सब जानते हैं, elderly patients में काफी सारी medicines पहले से ही चल रही होगी. So अगर उसका कोई एक्सरसाइज पे इफेक्ट आ रहा है, या तो मेडिकेशन का एक्सरसाइज पे इफेक्ट आ रहा है, एक्सरसाइज का मेडिसिन पे इफेक्ट आ रहा है, दोनों ही केसेस के अंदर फार्मासिस्ट का रोल जरूरी हो जाएगा, बिकॉज डोजेस को अल्टर करने में फिजिशियन के साथ में फार्मासिस्ट लाइसेंस कर सकता है. सिमिलरली, एनी साइकोलॉजिस्ट और हेल्थ एजुकेटर, they can help the older adults change the way he or she views exercises and help the older adults successfully adopt an exercise program. देखिए, पेशेंट के बिहेवियर पे काफी वर्क करने की जरूरत रहती है, बिकॉज ओल्डर एडल्ट्स का जो मेंटल मेकअप होगा वो बिल्कुल अलग होगा. उनके लिए एक्सरसाइज का मतलब शायद कुछ और हो, या शायद उनका वो उसके इफेक्ट्स को उतना ना समझ पाए. सो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट या जो भी हेल्थ एजुकेटर है वो हमारी काफी हेल्प कर सकता है. फाइन. And these professionals can also educate individuals on pain management, stress management techniques which contribute to better overall health, comfort and functionality in the older adults. देखिए, बेटर रहेगा अगर हम एज ए टीम वर्क कर सकें. अगर टीम आप नहीं फॉर्म कर पा रहे हैं, या आपका सिनेरियो ऐसा है कि आप वहां पे नहीं प्रॉपरली अवेलेबल है, तो ठीक है, आप इंडिपेंडेंट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट. बट अगर आप इन सब चीजों को लेके साथ में चल सकते हैं, फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, नर्स, डाइटिशियन, सोशल वर्कर, फार्मासिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, सबको लेके चलेंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट विल बी मच मच बेटर. एंड आई सिंपली से, डोंट पोक योर नोज इनटू एनीबॉडी एल्स प्रोफेशन. मैंने बहुत देखा है, हम फिजियोथेरेपिस्ट है बट हम डाइटिशियन का काम भी हम ही कर रहे हैं, पेशेंट को डाइट चार्ट बना के दे रहे हैं. क्यों दे रहे हो यार? एट माय क्लिनिक आई हैव हायर्ड अ डाइटिशियन पर्टिकुलरली फॉर दैट थिंग. शी इज कमिंग ट्वाइस अ वीक. हर पेशेंट से इंडिविजुअली बात करते हैं, जो भी डाइट में मॉडिफिकेशन करते हैं, हो सकती है जो भी करना है वो करती है. एंड आई कैन टेल यू फॉर श्योर, रिजल्ट्स विल बी देयर. एक बार आप ट्राई करके देखिए. दैट इज नॉट सो कॉस्टली ऑल्सो. फाइन. बट ये तो आपको ही वर्क अपॉन करना पड़ेगा इन चीजों के ऊपर. फाइन ना. नाउ, रोल ऑफ अ फिजियो. अगर हम स्पेसिफिकली फिजियो की बात करते हैं, प्री एक्सरसाइज असेसमेंट. हमको पेशेंट को एक्सरसाइज प्रोग्राम सजेस्ट करने से पहले प्रॉपर असेसमेंट करना है. उधर पे हमारा रोल बहुत ज्यादा जरूरी होगा. फाइन. सिमिलरली, एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन बोथ इन प्रीहैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन. प्रीहैबिलिटेशन क्या होता है? प्रिवेंशन. कुछ भी हो रहा है उससे पहले ही आप जो भी एक्सरसाइज प्रोग्राम दे रहे हैं ताकि पेशेंट को वो ना हो. एंड रिहैबिलिटेशन इज ऑब्वियसली पेशेंट को ऑलरेडी हो चुका है कोई भी चीज, आप उसको क्योर करने के लिए वो चीजें दे रहे हैं. वेट लॉस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पर्टिकुलरली इन अवर इंडियन सिनेरियो. यहाँ पे क्या जरूरत है वेट लॉस की? बिकॉज मोस्ट ऑफ द एल्डरली आर ओवरवेट. सो वेट लॉस पे आप काम कर सकते हैं along with the dietitian. Fine. Similarly, patient education, I have talked earlier also about this thing. Now, this is all in the first part. We'll be talking about the rest in the second part. So we will be meeting around 4 o'clock again. And if you have any queries regarding this first part, you can just WhatsApp me in our WhatsApp group, and I will just try to answer all those things. Fine. So this is all for the first session. Thank you for listening very patiently to everything.